ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरे ख्याल में ये है 111 23। अच्छा 23 है। मुझे लगा ट्वेंटी मेरे फोर पास है, सर 24। है 23 पढ़ लिया था हम लोगों ने। अच्छा ठीक है, ओके, यस, ओके, 24। जी जी जी। तो आप पढ़ो तुम। हाँ। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्मयनये अरुण अरुरुहुर्विप्रा तद तद इकष्णा महोत्सवः। Translation. When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respectable families of Dwarka went up to the roofs of their places just to have a look of the Lord. They considered this to be the greatest festival. Purport. To have a look at the Lord is a great festive occasion, undoubtedly, as it was considered by the metropolitan ladies of Dwarka. This is still followed by the devout ladies of India, especially during the days of the Julana and Janmashtami ceremonies. The ladies of India still throng up in the greatest number at the temple of the Lord, where his transcendental eternal form is worshipped. The transcendental form of the Lord installed in temple is not different from the Lord personally. Just a form of the Lord is called Ark Vigraha or Ark Archer incarnation, and it expanded and is expanded by the Lord by his internal potency just to facilitate the devotional service of his innumerable devotees who are in the material world. The material senses cannot perceive the spiritual nature of the Lord, and therefore the Lord accepts the arch vigraha, which is apparently made of material elements which like earth, wood, stone, but actually there is no material contamination. The Lord being one alone, a Kaivalya, there is no matter in him. He is one without a second, and therefore the Almighty Lord can appear in any form without being contaminated by the material conception. Therefore, the festives in the temple of the Lord, as held generally, are like festivals performed during the manifestive days of the Lord of Dwarka about 5,000 years ago. Authorized acharyas who know the science perfectly install such temples of the Lord under regulated principles just to offer facilities to the common man. But persons who are less intelligent without being conversant with the science mistake this great attempt to be idol worship and poke their nose into that to which they have no access. Therefore, the ladies or men who observe festivals in the temples of the Lord just to have a look at the transcendental form are 1,000 times more glorious than those who are non believers in the transcendental form of the Lord. It appears from the verse that inhabitants of Dwarka were all owners of big places. This indicates the prosperity of the city. The ladies got up on the roofs just to have a look at the procession and the Lord. The ladies did not mix with the crowd on the street, and thus their respectability were perfectly observed. There was no artificial equality with the men. Female respectability is preserved more elegantly by keeping women separate from the man. The sexes should not mix unrestrictedly.
हाँ, they are explaining that really हम अपने सेंसेस से बहुत ऊपर उठ करके ही इस प्रेम को और इस जो गोपियों में और वहां की स्त्रियों में जो उन प्यार था भगवान को देखने के लिए, वो सेंसेस वगैरह से बहुत ऊपर की चीज है। बहुत टेक्निकल माइंड इंटेलिजेंट पीपल इस चीज को नहीं उतना फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे ना प्रभुपाद जो है ना सबसे पहले ये बता रहे हैं आर्च विग्रह की, मतलब आर्च विग्रह और भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। वो भगवान जो है मंदिर में या कहीं पर भी जो उनकी आर्च विग्रह है या फोटो है या जो भी है, अगर वो कर्म है मतलब तो एक तरह से ही इज, ये उनकी कॉजलेस मर्सी है ऑन द डिवोटीज। ही अपीयर्स इन द टेम्पल्स एंड कर्म है इन द फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट, कि भाई क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी मटेरियल आईज से या मटेरियल सेंसेस से उनको नहीं समझ सकते हैं। तो ही हैज appeared there, he is always there in that form, आर्च विग्रह की फॉर्म में, मतलब मूर्ति की फॉर्म में। अब क्या है यस ना, जो यस। लेस नॉलेजेबल लोग हैं, जो लोग एनवियस हैं टू द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, वो हम्म इस तरह की भ्रांतियां फैलाती हैं कि ये सम काइंड ऑफ आइडल वर्शिप है, या मतलब वो फिर हर तरह से जो जो हमारे वहाँ लोगों की श्रद्धा है ना, उसको खत्म करने का हम्म प्रयास करते हैं। मतलब जो जो कॉमन हम्म मासेस की, और स्पेशली यहाँ पर लेडीज को प्रभुपाद ने बड़ा ग्लोरीफाई किया है इन हिज ओन वेज की। हम्म एंड एक्चुअली आज वरुण है नहीं, बट उनका बार बार ये मानना है कि लेडीज आर एंडाउड विद दिस स्पेशल ब्लेसिंग, कि उनके अंदर हम्म भक्ति जो है वो नेचुरल है। और जो मेन है ना, हम्म वो जरा ज्यादा लॉजिकल माइंड रखते हैं। मतलब वो जो है ना, हम्म मतलब आप समझ रहे हो ना कि अच्छा, लेडीज के अंदर में सरेंडर का जो जो एलिमेंट है ना, वो काफी ज्यादा होता है, एंड हम्म उसका उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। तो हम्म ये चीज जो है ना, ये मतलब जो ये इक्वलिटी वाली बातें जो है, आज वो है नहीं, लेकिन हमारा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। इक्वलिटी वाली बातों में क्या हम्म मतलब कोई खास दम है नहीं, बिकॉज वो बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड बोथ हैव देयर ओन स्ट्रेंथ इन देयर ओन वेज, यू सी। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ हम्म पर दो तीन चीजें जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो आर्च विग्रह के बारे में, उस जमाने की प्रॉस्पेरिटी इन हम्म द्वारका, प्लस लेडीज की क्या हम्म पोजीशन होती थी उस समय भी, है ना, और वो उनकी उनकी जो प्रेमा भक्ति है, कैसे उनके पास में थोड़ा बहुत क्या काफी नेचुरल है। तभी एक बार हम लोगों ने पहले भी कहा कि हम्म इसीलिए लेडीज की लाइन जो है ना मंदिरों वगैरह में हर जगह पे वो काफी मात्रा में होती हम्म, हैं, है ना। तो चाहे वो, हाँ इट डजेंट मैटर कि क्या नाम है कौन से भगवान के लिए कर रही हैं या क्या कर रही हैं, वो एक अलग बात है। बट दे आर ऑलवेज हम्म मोर रिलीजियस, या वो जो है वो ज्यादा होती हैं। मैंने घरों में ये भी देखा हुआ है बहुत, कि व्रत करने में या कोई भी इस टाइप की चीज करने में लेडीज और जेंट्स में बड़ा फर्क होता है। तो ये दोनों बातें बताई हैं, हाँ है ना। तो आगे पढ़ें हम जी। लोग, है ना। तो टेक्स्ट 25, नित्यम निरीक्षमाणाम यद्यपि द्वारको कसाम न वितृपयन्ति हि दृशा दृशा श्रियो धामांग मच्युतम। The inhabitants of Dwarka were regularly accustomed to look upon the reservoir of all beauty, the infallible Lord, yet they were never satiated. Purport: when the ladies of the city of Dwarka got up on the roofs of their palaces, they never thought that they had previously many times seen the beautiful body of the infallible Lord. This indicates that they had no satiation in desiring to see the Lord. Anything material seen for a number of times ultimately becomes unattractive by the law of satiation. The law of satiation acts materially, but there is no scope for it in the spiritual realm.
The word infallible is significant here because although the Lord has mercifully descended on earth, he is still infallible. The living entities are fallible because when they come in contact with the material world, they lack their spiritual identity. And thus, the body materially obtained becomes subjected to birth, growth, transformational situation, deterioration, and annihilation under the laws of nature. The Lord's body is not like that. He descends as he is and is never under the laws of material modes. His body is the source of everything that be, the reservoir of all beauties beyond our experience. No one, therefore, is satiated by seeing the transcendental body of the Lord because there are always manifestation of newer and newer beauties. The transcendental name, form, qualities, entourage, etc. are all spiritual manifestations. And there is no satiation in chanting the holy name of the Lord. There is no satiation in discussing the qualities of the Lord. And there is no limitation of the entourage of the Lord. He is the source of all and is limitless. ये बड़ा अच्छा परपोर्ट है एक्चुअली. यू सी यहाँ पर जो है ना प्रभुपाद ने लॉर्ड के बारे में बताया है कि भाई वो क्या फर्क है. ही इज नॉट फॉलिबल, वेरएज क्या नाम है जो मॉर्टल जो हम मतलब जो जो कंडीशनड सोल है वो जो है वो फॉलिबल है और उसके साथ ये सारा कुछ होता है मतलब बर्थ बर्थ डेथ क्या नाम है ओल्ड एज डिजीज एंड ऑल दैट. अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर जो भगवान की जो 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 भी चीज है उससे कनेक्टेड, उसमें आदमी सैचुएटेड नहीं हो पाता. मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि भाई जो भी चीज मटेरियल उसको बार बार आप देखोगे ना तो यू विल गेट बोर्ड. बट भगवान के बारे में ये ऐसा नहीं है. अच्छा, एक चीज आप देखो, ये आप हम फील भी अगर आप करें पढ़ेंगे ना ये भागवतम, क्यों भागवतम भी भगवान है, ही इज द लॉर्ड हियर, है ना. तो आप देखो एवरी टाइम यू रीड, every time you read, 1,000 times you read, you will have a very very new insight. पहली बात तो ये एक बार से दूसरी बार मतलब पहली बार ही पढ़ना जो है वो भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी आप वहां तक पहुंच पाते हैं. और सही बात. आप जो है अगर इसको पढ़ना शुरू करते हैं ना तो दूसरी बार पढ़ोगे तब भी आपको, मैं तो ये बता रहा हूँ ना, मतलब इसी चाहे जैसे भी है, मतलब चाहे जिस भी तरीके से मैं दूसरी या तीसरी बार इसको पढ़ रहा हूँ, है ना. और मेरे पास तो गीता प्रेस की भी क्रम है भागवतम है, क्योंकि वो खाली सिंपल ट्रांसलेशन है और वो भी मतलब अच्छा किया हुआ है, हिंदी में है. तो वो कथा के रूप में है, मोस्टली कथा के रूप में है. तो और ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसको मतलब बिल्कुल ही, क्योंकि जो व्यासदेव जी ने जिस हिसाब से इसको लिखा है ना कि भगवान की भक्ति का मतलब भगवान की भक्ति नहीं थी पुराण उसमें क्या नाम है वेदांत सूत्र में या बाकी चीजों में नहीं थी ना महाभारत में, तो इसीलिए वो अनहैप्पी थे. तो फिर नारद जी ने आके उनको ज्ञान दिया था और फिर वो जो है वो क्या नाम है मतलब उन्होंने भागवतम की स्थापना की थी. और वही चीज जो है ना हमारे आचार्यों ने और लास्ट में प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी में हम लोगों को दे दिया है ताकि सबकी समझ में आ सके, है ना. तो मेन चीज जो मतलब है, मैं क्या कहना चाहता था दिमाग से ही उतर गया. और कि भाई ये जो है ना ये इसके अंदर में मतलब अनसैचुएटेड रहोगे आप जब भी आप भगवान के जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, यू सी वेरी फैक्ट कि हम लोग आप जब भी बात करते हैं तो हमेशा एक नया ही आनंद मिलता है, यू नो. सही बात. और ये जो है ना ये बहुत ही पायस एक्टिविटी है कि क्रम है टू गेट टुगेदर टू डिस्कस टू टॉक अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज रीडिंग भागवतम. हमने जीजा जी कहीं पढ़ा था अभी, हम लोग जो पढ़ इस पहले वाले का थोड़ा सा मुझे याद आया कि ये जो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में खास करके इंडियन उसमें है कि
हम लोग ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत लोग इसका खंडन करते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है और पत्थर है ये वो। लेकिन सच ये है, जो पुराने ज्ञानी लोग हैं उन्होंने बताया है कि इसका इसमें ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नहीं है। दे टेल कि ये जो चाहे वो पत्थर के हम बनाते हैं, चाहे हम ये कैलेंडर्स हैं, मूर्तियां हैं बनाते हैं, इनमें एक्चुअली होता ये है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हाँ, ये जो है ना, जो ये थोड़ा सा आप ठीक कह रही हो, यू गो गो अहेड, यस, सॉरी, हाँ। तो जो प्राण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग मानते हैं कि, मान लीजिए 10 गोपियां कह रही हैं, 10 द्वारिका की लेडीज ने जो है उनको माना है, तो वो जो उनकी फेथ है वो उस आइडल को अपने आप में इतना एम्पावर कर देती है कि जब वो आते हैं जो कम जानते हैं या नहीं मानते हैं, और जब वो नतमस्तक होते हैं, वो उस रूप को देखते हैं, तो उनके अंदर ठीक धीरे से वो चीज पास हो जाती है जो उनके अंदर थी, जो उन्हें मानते थे। और उनके अंदर एक शिफ्ट आ जाता है, उनके बिलीफ में एक शिफ्ट आ जाता है। इनफैक्ट जनरली कॉमन आदमी क्या करता है कि वो अपनी किसी न किसी विल एंड विश को ही मांगने, डिस्कस करने भगवान के पास जाता है। तो वो प्राण की ताकत उनकी उस चीज को या तो रिफॉर्म करती है, या डिपेंड करता है कि उनका लेवल क्या है, या उसको पूरा कर देती है। हैंसफोर्थ उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। एंड दिस वे दिस प्रोसेस कैरीज। तो अपना जो सनातन धर्म है, ये इतना ज्यादा हाई है कि इसको क्या ही एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश्ड है। ये कोई हिंदू मुस्लिम का तो है नहीं, तो ऑल पॉपुलेशन को कंटेन करता है, जितनी भी तरह की ह्यूमन है यहाँ पर। दूसरी बात ये जो मैं अपने उसमें जानती हूँ कि लेडीज को जो है, हमारे जैसे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। मेन जो है वो अपने जनरली लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, यानी कि एनालिटिकल ब्रेन से ऑपरेट करते हैं। और लेडीज जो है वो अपने राइट ब्रेन से ऑपरेट करती हैं, यानी कि अपने इमोशनल फीलिंग ब्रेन से। और भक्ति भाव क्या है? भगवान तुझसे भाव के भूखे हैं। और औरतें जो हैं वो मतलब बायोलॉजिकली एक तरीके से वहीं से डिराइव होकर के आती हैं। तो उनके लिए जैसे वो क्यों बहुत जल्दी छोटे बच्चे को देख करके एकदम मतलब ममता में डूब जाती हैं, प्रेम आ जाता है, 10 बार भी वो उस चीज को लेकर के 100 बार भी करने में नहीं थकती हैं। और भगवान के लिए ये चीज बड़ी पैरेलल है, भगवान के साथ भगवान को जो चाहिए। इसलिए लेडीज बड़े आराम से उस चीज को कंसीव कर पाती हैं, समझ पाती हैं उस आइडिया को, उस भक्ति को। तो वो बहुत जल्दी आराम से उस चीज में आगे बढ़ जाती हैं। और फिर उस चीज की भावना उनको धीरे धीरे, की भावना भी आप किसके साथ जोड़ रहे हैं, एक संपूर्ण तत्व के साथ जोड़ रहे हो, तो फिर वैसे ही आपके ऊपर दया होने लगती है और आपका पाथ और इजी हो जाता है। देखो ना, तुमने तो इसको जो है ना, मतलब साइंटिफिकली भी इस चीज को वैलिडेट किया अभी भी जस्ट नाउ, बिल्कुल जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाली बात करके। और तुमने बताया कि भाई जी। भाई अब हर चीज के मूल कारण भगवान है, उन्होंने क्यों किया है, दैट ही मतलब नोस। तो मूल कारण है वो, तो हम लोग अगर भक्ति करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो उसमें भी आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज जो है, जो तुमने बताई प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, भाई मैंने एक दो प्राण प्रतिष्ठा देखी है टेम्पल में, जब नया आर्च विग्रह वो क्या नाम है करते हैं, जिसका इनॉग्रेशन कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, काफी उसके लिए क्या नाम है, मतलब बहुत ही एलेबरेट सेरेमनी होती है। और काफी हाँ। उनसे क्रम में कई प्रीस्ट मिल करके और कई मंत्रों का उच्चारण करके भगवान का आह्वान किया जाता है। पहले क्या नाम है कि आप आकर के हम्म। इस आर्च विग्रह में विराजिए, है ना। तो ये जो है कर्म कार्यक्रम होता है। और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हाँ। मंदिर में की जाती है, इसीलिए मंदिर में जाना काफी जरूरी होता है। और स्पेशली जो जितने भी ये मंदिर क्रम है, जो प्राचीन मंदिर है, वो और भी ज्यादा उतने ही क्रम है, मतलब एग्जॉल्टेड है। प्लस, हम्म। लेकिन इसके बावजूद भी जो आप घर में भी पूजा कर रहे हैं ना, तो भक्त की भावना के हिसाब से भगवान जो है वो उसके अंदर में विराजमान होते हैं। भगवान जो है ना, मतलब वो तो कितना प्रेम सबसे आप। आपके अंदर, हाँ, मतलब यू, आई थिंक यू गेट इट। तो मेन चीज क्या है ना कि आपकी क्या फीलिंग्स है, मतलब जो आप दिल से, मतलब दिमाग से नहीं, दिल से क्या कर रहे हैं, हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर लेडीज को थोड़ा सा
एडवांटेज है, जहां पर कि वो जो है ना वो दिल से ज्यादा ऑपरेट करती हैं, दिमाग से कम ऑपरेट कर। हालांकि अब ये सब चेंज हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अब इस तरह से लड़कियों को भी मतलब इस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है, ताकि वो मतलब यू सी दे आर लूजिंग देयर नेचुरल प्रोपेंसिटीज। ये बड़ा हाँ हाँ, अनफॉर्चुनेट है, ये यू तो नो। है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली ये जो है ना, मतलब जो मटेरियलिस्ट हैं, जो क्या नाम है, जिन जो दोज हु आर प्रॉफिटिंग बाय दिस, दे आर डूइंग इट एट ए वेरी वेरी एग्रेसिवली। क्योंकि जो जितना हम्म। भी है ना, दे आर प्रॉफिटिंग, यू नो। कि जैसे जैसे उनकी पावर तो तभी बढ़ेगी जब भगवान से आप टूटेंगे, मतलब because अभी तो आपके वो भगवान की पावर है, भगवान इज हैविंग ए कंट्रोल ओवर यस। यू। तो दे हैव टू ब्रेक दैट, टू सो दैट यू कम अंडर हम्म। देयर कंट्रोल। सी दैट इज द यस। स्ट्रगल विद, और उसमें कलयुग का तो अपना योगदान ही है। तो इसीलिए क्या नाम है, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो तो उसका तो क्या नाम है, बहुत ही महत्व है। चले आगे पढ़ें, क्या नाम है ना, टेक्स्ट 26। यो निवासो यशयोरः पानपात्रं मुखं दृश्याम् बाहवो लोकपालां सार सारांग अंगणाम पदाम्बुजम। Translation: The Lord chest is the abode of the goddess of fortune. His moon-like face is the drinking vessel of eyes which hanker after all this is beautiful. His arms are resting places for administrative demigods, and his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any subject except his lordship. Purport: There are different classes of human beings, all seeking different enjoyments from different objects. There are persons who are seeking after the favor of goddess of fortune, and for them the Vedic literatures give information that the Lord is always served with all reverence by thousands and thousands of goddesses of fortune at the Chintamani Dham, the transcendental abode of the Lord, where the trees are all desire trees and the buildings are made of touchstone. The Lord Govinda is engaged there in herding Surabhi cows as his natural occupation. These goddesses of fortune can be seen automatically if we are attracted by the bodily feature of the Lord. The impersonalist cannot observe such goddesses of fortune because of their dry speculative habit, and those who are artists overtaken by the beautiful creation should better see the beautiful face of the Lord for complete satisfaction. The face of the Lord is the embodiment of beauty. What they call beautiful nature is but his smile, and what they call the sweet song of the birds are but specimens of whispering voices of the Lord. There are administrative demigods in charge of departmental service of cosmic management, and there are tiny administrative gods in the state service. They are always afraid of other competitors, but if they take shelter of the arms of the Lord can protect them always from the attacks of enemies. A faithful servant of Lord engaged in the service of administration is the ideal executive head and can well protect the interest of the people in general. Their other so-called administrators are symbols of anarchism, leading to the acute distress of the people who are governed by them. The administrators can remain safely under the protection of arms of the Lord. The essence is everything is the Supreme Lord. He is called the Saram. And जी से क्या पढ़ेंगे? सारम कहना आई चाहिए, थिंक इट इज सारम। Saran. हाँ, ए के ऊपर जो है ना, Saram, yeah, सारम। Saram, right. And those who sing and talk about him are called Sarangas.
are the pure devotees. The pure devotees are always hankering after the lotus feet of the Lord. The lotus has a king of honey which is transcendently relished by the devotees. They are like the bees who are always after the honey. Sarla Rupa Goswami, the great devotee Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, has sung a song about his lotus honey, comparing himself to the bee. O my Lord Krishna, I beg to offer my prayers unto you. My mind is like the bee and it is after some honey. Kindly therefore give me bee mind a place at your lotus feet, which are the resources of all transcendental honey. I know that even big demigods like the Brahma do not see the rays of the nails of your lotus, even though they are engaged in deep meditation for years together. Still, O infallible one, my ambition is such, for you are very merciful to your surrendered devotees. O Madhava, I know also that I have no genuine devotion for the service of your lotus feet, but because your lordship is inconceivable powerful, you can do what is impossible to be done. Your lotus feet can deride even the nectar of the heavenly kingdom, and therefore I am very much attracted by them. O Supreme Eternal, please therefore let my mind be fixed at your lotus feet, so that eternally I may be able to relish the taste of your transcendental service. The devotees are satisfied with being placed at the lotus feet of Lord, and have no ambition to see his all beautiful face or aspire for protection of the strong arms of the Lord. They are humble by nature, and the Lord is always leaning towards such humble devotees. ये किसी भी डिवोटी का जो ये प्रेम भाव एक्सप्लेन करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक हार्ट मेल्टिंग फीलिंग वाली चीज और अपने अंदर प्रज्वलित होता महसूस कर सकते हैं हम लोग। वैसे भी एक ह्यूमन माइंड का नेचर है कि कोई चीज जिसने प्राप्त की है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा ही है, उसे रेस की कंपटीशन में लेना है भाग, और वो किसी को जीतता हुआ देखता है तो उसको लगता है मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरह डिवोटीज के भी केसेस में है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग सुनते हैं बहुत अनादिकाल आदिकाल से भी होते चले आए, और जैसे इन्होंने अभी बताया हुआ है ये सरला रूपा गोस्वामी जी का, कि इन्होंने जो पोयम लिख के जैसे एक्सप्लेन किया है, रियली इट मेक इजियर टू फील एंड गेट मोर अटैच्ड। ये हम भी कर सकते हैं, ये रियली अचीवेबल है, फीलेबल है। पहले जीजा जी हम भी सोचते थे, आपको हम बताएं, जब हमने थोड़ा बहुत भी भगवान को जाना तो हम क्या हम सोचते थे कि जैसे आपने उसमें गाया नहीं गया है कि हम आपके चरणों में बैठते हैं, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा गॉड को पर्सनिफाइड वे में बात करती थी, तो भगवान से कहते थे नहीं, हमको भगवान जी ने आपके चरणों में नहीं, हमको आपकी गोद में बैठना है। अरे वाह, मतलब बच्चे थे ब्यूटीफुल। तब। तो हम कहते थे चरणों में बैठने का क्या मतलब है, हमको तो आपका प्यार चाहिए, जैसे पापा प्यार करते हैं वैसे हमको आपका प्यार चाहिए। लेकिन जीजा जी जब थोड़े 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 सब करते करते उस चीज की महिमा को समझ पाए, तो लगा कि चरण में ही बैठना है। वो कोई वो दास वाली फीलिंग थोड़ी है। अब वही वाली बात होगी कि कोई चीज कितनी बड़ी है, कि बड़ा शब्द कैसे इसको बोले, मतलब व्हाट ही इज रियली। तो अब ये तो अपनी अपनी फीलिंग है, लेकिन तब समझ में आया कि क्यों कहा गया है कि हाँ चरणों में बैठना है, क्यों कहा जाता है कि आई वॉन्ट टू रियली वर्शिप योर फीट एंड ऑल। तो समझ में आया। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वही है कि आई वॉन्ट टू रिलेट दिस वे टू गॉड। लेकिन हाँ, जब महसूस किया तो पाया कि हाँ, भगवान के तो चरण में ही शरण मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बड़ा हम अच्छा तुमने छोटे थे तो बताया। हम इन चीजों को थोड़ा लेते थे कि हम भगवान क्या से लेते कोई थे? भी बात होती थी, हमने
मतलब बहुत बचपने की है। जब हम लोग अपने गुरु महाराज जी के यहाँ जाते थे तो हम बहुत छोटे थे, तो हमारी बड़ी डिजायर थी कि हमारे पास ना एक साइकिल हो। हम सपना देखते थे कि हमारे पास ऐसी हो, हम ऐसे चला रहे। तो हम एक बार गए, अरे हमारे वाह, मन अच्छा। में आया कि पापा लोग इतनी महिमा गाते रहते हैं कि ये सब दे देते हैं, ये सब दे देते हैं। हम लिटरली इनके द्वार में जाके हमने सीधे यही बोल दिया। हमने कहा कि महाराज जी हमको ना एक साइकिल चाहिए। तो वहां जो और भक्तगण बैठे थे, उनमें से जो हम लोग क्या घर में आते थे, वो जब बाद में आए तो उन्होंने हमसे कहा कि जो है, बड़े प्यार से उन्होंने हमसे कहा कि अरे बेटा तुम तो उससे क्या नहीं प्राप्त कर सकती हो। तो हमने कहा पहले हमको साइकिल दे, फिर हम हाँ। देखेंगे। जीजा जी आप यकीन करेंगे, उस समय वाकई हमारे जो घर की कंडीशन थी उसमें वाकई हर चीज बहुत सोच समझ के होती थी पापा के द्वारा। करेक्ट, यस मुझे यस यस। इम्पॉसिबल सा ही लगता था। और मेरी जीजा जी एक हफ्ते के अंदर हीरो ब्रांड की साइकिल आकर के खड़ी हो गई। तो मेरे अंदर विश्वास इतना अजीब सा आया कि दिमाग ह्यूमन बड़ा अजीब है। लेकिन हाँ, एक थैंक यू मैंने उनको किया। फिर इसी तरह जीजा जी जब हमें एमबीए करना था ना, तो पापा ने हमको सॉरी बोला कि नहीं ठीक है, जो भी तुम्हारा रैंक रैंक आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें एडमिट नहीं कर पाऊंगा, वहां पे मैं एडमिशन नहीं अरे दिला अच्छा। पाऊंगा बेटा, नहीं मेरा। तो हम्म हम जी ज्यादा तो नहीं, हम आपको बताएं पढ़ने में तेज थे, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करते थे। हम्म। थोड़ा इमोशनल बैगेज की वजह से हम कहीं कहीं फेल होते थे, अदरवाइज हम पढ़ने में अच्छे थे, जैसा हम जानते हैं समाज के नजरिए से। तो हमने भगवान जी के पास हम गए। अरे तब तक हम जान चुके थे कि भगवान से चीजें जिद नहीं की जाती। तो हमने भगवान से कहा भगवान मेरा बहुत मन है और मैं अपने आप को थोड़ा ग्रो कराना चाहती हूँ लाइफ में, और अपने घर की स्थिति ठीक करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे फेवर में डिसीजन कर दीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम समझ जाएंगे मेरी इसी में भलाई है। ये मैंने 2 4 5 बार भगवान जी से कहा जा जा करके। मम्मी को पूजा करते देखते थे। और जीजा जी हम आपको सही बता रहे हैं, मेरे मेरे को आंसर नहीं पता कि कैसे पापा का मन बदला। पापा ने अपनी एफडीज तोड़वाई और मेरा एडमिशन हो ओ, गया। पापा ने छुड़वाई। हम्म हाँ, हम्म मतलब अर्लियर ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कि वो इसको ब्रेक करे। उन्होंने उनका बोला कि दिमाग नहीं, ये चेंज हुआ, सब यू सी। क्योंकि हम ये बड़ा बहुत ही पावरफुल 3 बहनें थी कदम है। तो उनका और फिर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक जीजा जी हम आपको इंसिडेंट और भी बताते हैं जो वाकई में हमारे बहुत बहुत पर्सनल है, छोटी सी शॉर्ट में बताऊंगी। मैं एक बार जीजा जी जब एमबीए कर रही थी तो मैं एक बहुत बड़ी कैलेमिटी में फंस गई थी। हम लोग थोड़ा सीधे माहौल में पले हैं, तो एक ऐसी कैलेमिटी कि आप समझ लीजिए जैसे समवन हैव फॉलन इन लव विद मी इन ए हम्म रॉन्ग वे, जबकि वो हमारे भाई लगते थे। तो ये सारी पूरी सामाजिक बदनामी का पूरा केस आ गया था, आप समझ लीजिए। मगर मैं ऑल इग्नोरेंट थी वहां पर, मेरा कोई रोल नहीं था। उसकी अपनी फीलिंग थी, उसकी अपनी कहानी थी। माय तो गॉड। वो बहुत मेरी बदनामी हो रही थी। तब तक हम वहां से हॉस्टल करके समाज में मतलब वहां रहने आ गए थे टीनशिप पे। तो सब लोग मुझे ही बोलने लगे, जनरली लोग लड़कियों को ही बोलते हैं। तो और वो लोग इतने हावी तरीके से बोल रहे थे कि मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि भैया इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कभी हम्म इसको कुछ नहीं कहा। भगवान जाने फीलिंग कहाँ से आई है और क्यों ये इतना कर रहे हैं कहानी। और सब लोग मुझे डांटने लगे, क्योंकि जिनके हम रहते थे वो पापा का ये था कि मतलब आप ही रूपा को देखो वहां पे। तो वो भी मुझे डांटने लगे, मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, ये है पता नहीं वो क्या क्या सोचने लग गए। मैं जीजा जी बस भगवान के पास गई और मैंने उनसे 2 लाइन कही। मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान तुम जानते हो कि मैं क्या हूं और क्या मैं नहीं हूं, क्या मैंने किया है क्या मैंने नहीं किया है। उसमें यदि बात सिर्फ इतनी थी कि वो बीटेक कर रहा था तो उसकी मैथ्स थोड़ी वीक थी, उसके परसेंटेज बहुत डाउन होते थे। मैं मैथ्स से पढ़ी हुई थी तो मैं उसको मैथ्स पढ़ाने लग गई थी। अब जो भी हो, ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट रॉन्ग, ही वॉज ऑल्सो बच्चा एट दैट टाइम। तो और जिया जी उसके बाद मैं बिल्कुल निवृत्त हो गई। जितनी मेरे सामने पहाड़ जैसी स्थिति आई, मैं बस अपने मन में यही बोलती थी यू नो व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम नॉट। और जीजा जी मुझे इतनी सरलता से भगवान ने निकाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, मेन जो कैलेमिटी आदमी महसूस करता है वो सब उसके ही फीलिंग और मन की होती है ना। मेरे को उन्होंने बिल्कुल रिलीव कर दिया, बिल्कुल रिलीव। आप समझ लीजिए मेरे पापा हम पे इतने खफा थे, इतने खफा थे, मुझे वो भी नहीं उतना पेन किया। समाज वाले थे तो थे ही,
लेकिन मैंने अपने आप को पापा से भी फ्री पाया कि आपको जो समझ आ रहा है, आपको जितनी गुस्सा आ रही है आप जानिए। और मैं अपनी, उस टाइम मेरे एग्जाम भी थे, तो मैं पता अपना पढ़ पा रही थी, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि मैं तो खराब ना कर जाऊं अपना एग्जाम। बट उन्होंने मुझे ऐसा, मैंने उस चीज को फील किया। और आपको एक एंड पॉइंट बता दूं, याद आ गया तो, कुछ टाइम के बाद, आई डोंट रिकॉल द टाइम, दैट बॉय केम, उसने मुझसे भी बोला कि नहीं इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये वन साइड था। उसने आकर मेरे ओनर को भी बताया कि नहीं, वो मुझे दीदी बोलता था लेकिन स्टिल ही, पता नहीं कैसे ही फेल्ट ऑल दैट। और उसने ओनर को भी जाके बताया, और जब वो बाराबंकी गया तो उसने मेरे फादर को पूरा एक लेटर लिखकर उनको भी माफी मांगी। और उसने बिल्कुल क्लियरली बताया, क्योंकि मेरे फादर बहुत गुस्सा थे मुझसे। उस टाइम के लोग थोड़ा अलग तरीके से सोचते समझते वहाँ थे तुम्हारे चीजों को पापा और कि जो, नहीं। या आई नो। शी, हाँ, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ज्यादा थे। तो उसने वहां भी जा करके क्लैरिफाई किया ये चीजें। दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। किसी का कुछ हो गया, वो साइड हो जाए, अपना रास्ता नाप ले, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई आकर के आपके सम्मान को रिस्टोर करने के लिए भी एफर्ट करे, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। वो तीनों जगह जाकर के उसने फिर उसको रिस्टोर भी कराया, मुझसे भी आके माफी मांगी। और जब वो आया तो पता नहीं कि मेरे अंदर उसको लेके कोई गुस्सा नहीं थी, बल्कि बस हमने उससे इतना कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी जिंदगी और मेरी तो बर्बाद हो ही रही है, तुम्हारी भी बर्बाद हो जाएगी। वो तो और ज्यादा डाउन फैमिली को था। तो तुम कृपया करके अपने अंदर धीरे धीरे करके ये रिफॉर्मेशन भाई लाओ, क्योंकि तुमको इससे कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा सच मेरे अंदर मतलब बहुत क्रोध नहीं था उसको लेके, अदरवाइज कोई और होता ना तो या तो खुद को मार डालता है, उसको मार डालता है। ऐसी स्टेज थी कुछ वो ऐसी। चलिए जीजा जी आगे पढ़ते हैं, कभी कभी हम हाँ, भी बड़े नहीं नहीं, भावात्मक हो मतलब जो जाते हैं। तुमने कहा ना, ये दिस इज, ये यही तो है यार, मतलब कि भगवान की ये महिमा है कि वो प्योर डिवोटी को, क्या नाम है, मतलब जो भी, मतलब आई 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 मुझे तो मेरा खुद का फेथ भी थोड़ा रेस्टोर हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, जो इसमें श्लोक हम्म। में था ना, ये बड़ा गजब का क्रम में रियलाइजेशन है कि देखो, लक्ष्मी जी जो है ना, वो भगवान के चरण को, हम्म। क्रम है, वो करती रहती चरण की सेवा। और भगवान ने उनको अपनी छाती पे रखा हुआ है, मतलब छाती पे है वो। यू सी, शी इज ऑन हम्म। हिज चेस्ट। अच्छा, और जो देवता लोग हैं वो उनके आर्म पे हैं। बट जो डिवोटीज है ना, सी हम्म। दे ऑल नीड, मतलब हम्म। लक्ष्मी, पहली बात तो है कि बहुत लोग लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करते हैं, धन पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के हम्म। लिए। लेकिन अगर या। आप भगवान की पूजा करेंगे ना, तो फिर लक्ष्मी जी हरसेल्फ बिकम वेरी हैप्पी विद यू। यू नीड नॉट वरी, जो तुम्हारे साथ ये। कई बार जो हुआ है, यू सी, मतलब कि फिर जी। भगवान की कृपा के साथ साथ आपको लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी। यू नीड नॉट, क्या नाम है। और ये भक्ति का जो तुमने ये बताया ना पूरा एपिसोड, ये बड़ा बड़ा मतलब अच्छा है। और जो तुमने उनका श्रीला रूपा गोस्वामी के गीत को तुमने जो मतलब जो एब्जॉर्ब किया है, और जिस तरह से उसने उसको बताया, ये दिस इज व्हाट इट इज, यू नो मतलब कि जो डिवोटी होते हैं किस तरह की प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, वो भगवान के चरणों से ऊपर ही नहीं हाँ। जाते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, मतलब वी आर हम्म। जस्ट नथिंग, आई एम जस्ट नथिंग एटलीस्ट। आई यू यू आर, तुम्हारा और राधा दोनों का ही काफी अच्छा है, क्योंकि काफी यू हैव बीन ब्लेस्ड कि भाई तुम अर्ली चाइल्डहुड से ही मतलब गुरु जी के अपने क्रम में रियलाइज सोल के संपर्क पे आ गई। और यू हम्म। हैव अचीव्ड अ लॉट। तो अब नेक्स्ट वाला ही पढ़ो, अदरवाइज या, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन क्या नाम है, इट इज, दिस इज व्हाट, जैसे आज हम लोग चतुर्श्लोकी गीता करेंगे ना, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोधयंतः परस्परम। जो आप अपने लॉर्ड के साथ के एक्सपीरियंसेस को ना, आप दूसरे डिवोटीज के साथ, चाहे दो ही जने हैं, दो ही जने, मोर देन टू पीपल आर हम्म। नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बोधयंता हाँ। परस्परम जो किया है ना, इससे दोनों जने का कल्याण होता है। तुम्हारा भी कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है, भगवान जो है
बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि भाई जो मेरे डिवोटी मेरे बारे में, मेरी ग्लोरीज की चर्चा कर रहे हैं। तो ये वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ चलो आगे पढ़ो। मेरे को पढ़ना है, यस सॉरी। सितार। अच्छा चलो हाँ, पढ़ो, पढ़ पढ़ लो, लीजिए। हाँ। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, ओके। सितात जी। पत्र व्यजैन रूपस्कृतः प्रसून वर्षैरभि वर्षितः पथि पिशंग वासा वनमालया वभो घनो यथार्कोडु पचाप वैद्युतः। As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from the sunshine by the white umbrella. White feathered fans moved in semicircles, and showers of flowers fell upon the road. His yellow garments and garland of flowers made it appear as if dark clouds were surrounded simultaneously by sun, moon, lighting, and rainbows. Purport: the sun, moon, rainbow, and lighting do not appear in the skies simultaneously. When there is sun, the moonlight becomes insignificant. And if there are clouds and rainbow, there is no manifestation of lighting. The Lord's bodily hue is just like new moon cloud. He is compared herein to the cloud. The white umbrella over his head is compared to the sun. The movement of bunch hair fan of flukes is compared to the moon. The showers of flowers are compared to the stars. His yellow garments are compared to the rainbow. So all these activities of the firmament, being impossible simultaneous factors, cannot be adjusted by comparison. The adjustment is possible only when we think of the inconceivable potency of the Lord. The Lord is all powerful, and his presence, anything impossible, can be made possible by his inconceivable energy. But the situation created at the time of his passing on the roads of Dwarka was beautiful or could not be compared to anything besides the description of natural phenomena. आप देखो यहाँ पर क्या नाम है, मतलब उन्होंने क्या कंपैरिजन दिया है व्यासदेव जी ने। और एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से तो ये भी कह रहे हैं, परपोर्ट अगर आप पढ़े, कि भाई उसका ये कंपैरिजन भी इनसिग्निफिकेंट है, जो कि क्या नाम है, हाँ, हाँ। मतलब वो चीज इसमें आ ही नहीं सकती है श्लोक में, या जो मैं भी वर्स लिखूंगा, जो लोगों ने फील किया, जिस तरह से वो लॉर्ड को उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो चीज जो है, मतलब द लोवेस्ट पॉसिबल कंपैरिजन इज लाइक दिस, कि भाई मून भी, सन भी साइमल्टेनियसली, स्टार्स भी, है ना, द मून लाइक क्या नाम है ग्लो, एंड सन लाइक मतलब सन डिस्क बिहाइंड हिज हेड एंड ऑल दैट, एंड स्टार्स लाइक फ्लावर्स लाइक स्टार्स, दिस इज समथिंग लाइक, ये इस टाइप का डिस्क्रिप्शन भी जो है ना, वो काफी इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू द रियल थिंग विच द द्वारकावासी जो है वो देख रहे थे। ऐसा ही लगता है मुझे जो। द मैक्सिमम कंसीव की जो है कितना हाँ सुंदर हाँ हो सकता है, उन्होंने हाँ, वो उन्होंने इस उस तरह टाइम से के। कंपेयर करके इसको समझाने की कोशिश की। ऑल्दो वो वाले कंपैरिजन भी ठीक है, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इसी तरह की, क्योंकि मटेरियल माइंड है, मटेरियल आईज हैं, तो जो भी वो कैप्चर कर सके उसको उन्होंने यहाँ पे वर्णित किया है। तो यस नेक्स्ट। तुम पढ़ो भाई। हाँ, टेक्स्ट 28, या मैं पढ़ूं? नेटवर्क हाँ पढ़ लीजिए जी। मैं हाँ प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्टवृत्ताः स्वामृत स्वाम स्वामातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। Translation: After entering the house of his father, he was embraced by the mothers present, and the Lord offered his obeisances unto them by placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother. Purport:
It appears that Vasudev, the father of the Lord Krishna, had completely separate residential quarters where he lived with his 18 wives, out of whom Srimati Devaki is the real mother of Lord Krishna. But in spite of this, all other stepmothers were equally affectionate to him, as we will evident from the following verse. The Lord Krishna also did not distinguish his real mother from the stepmothers, and he equally offered his obeisances on to all the wives of Vasudev present on the occasion. According to the scriptures, also there are seven mothers: the real mother, the wife of the spiritual master, and the wife of the Brahmana, the wife of the king, the cow, the nurse, the earth. All of them are mothers. Even by this injection of the Shastras, the stepmother, who is the wife of the father, is also as good as the mother, because the father is also one of the spiritual masters. Lord Krishna, the Lord of the universe, plays the part of an ideal son just to teach others how to treat their stepmothers. हाँ, वो हर चीज का एक प्रतिपादन करने ही तो आए थे, एक आइडियल कैरेक्टर दिखाने की क्या चीज कैसे की जानी चाहिए। स्पेशली द्वारका में, यू सी, यहाँ पर वो जो थे ना, बिकॉज ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए किंग, द्वारका में वो किंग के रूप में थे, तो इसलिए यहाँ पर वो जो बिल्कुल सही तुमने पकड़ा है, और सारा कुछ ही परपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से वो अपनी मदर के पास गए, और स्टेप मदर भी क्यों उनकी क्रम में मदर के ही इक्विवेलेंट है, सातों जो मतलब मदर की फॉर्म में है कि गाय है, और मतलब स्पिरिचुअल मास्टर की वाइफ है, और सारा बता दिया ना, सात मदर अर्थ है, तो लाइक दैट गौ माता, मदर अर्थ, या दे आर ऑल गिवन द स्टेटस ऑफ द मदर, नॉट ओनली फॉर लॉर्ड कृष्णा तो लीला करके दिखाई है हमारे लोगों के लिए, लेकिन है वो बेसिकली हम लोगों के लिए भी। और इन सब चीजों की वजह से ना उस समय बड़ा सोसाइटी में स्टेबिलिटी बहुत थी, क्या नाम है, पीपल वर बिहेविंग इन ए, खैर उस समय, जिस समय भगवान खुद ही प्रेजेंट थे इस धरा पे, तब तो जैसा कि सब कुछ बताया गया भाई, वहां पे किस तरह का द्वारका जो था धन धान्य से और नेचुरल ब्यूटी से पूरा एंडाउड था, तो दैट इज देयर। बट हमारे को ये फायदा हो गया है कि हमारे को वही ये श्रीमद् भागवतम मिल गई है, तो हम लोग जो है ये जो है इस रस का पान करके कहीं ना कहीं इस सब चीजों को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे को पढ़ना है, तुमने पढ़ा ना? यहाँ पे जीजा जी एक चीज थोड़ा सा मेरे मन में आई हाँ है, हाँ तो भाई बिल्कुल, प्लीज। हाँ, जो है ये प्रश्न आता था पहले दिमाग में, जैसे मैं सोचती थी कि जैसे कैकेयी माता ने जब राम जी के कंटेक्स्ट में कि इन्होंने इतना इतना किया, उनको मंथरा ने ऐसे फंसा मतलब भर दिया, मैं सोचती थी कि भगवान भगवान ने यही स्टैब्लिश क्यों किया कि वो कैकेयी जी को माफ कर दें, और बल्कि जो प्रसंग बताते हैं उसमें तो जब वो वनवास से लौट करके आए तो उन्होंने पहले उन्हीं को बेस्टो किया, उनके पैर छुए, उनका हाल चाल पूछा। तो जो मेन एक्सप्लेनेशन उसमें था वो बड़ा हार्ट टचिंग था, जो मैंने उसके सूत्र समझे हैं कि जब आप किसी भी व्यक्ति की मतलब भगवान ये कि आप किसी भी व्यक्ति के अवगुणों को देखकर जब उसको मन में रखते हैं या उनका मनन करते हैं, ये गीता में कहीं आया है, तो इफ यू आर परसिस्टिंगली डूइंग अगेन एंड अगेन दिस वे, तो सबसे पहले तो बात ये है कि आप अगर मान लीजिए नहीं है ऐसे, तो आप नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि मनन से ही आपका निर्माण होता है। दूसरा, अब हम जब किसी भी दो लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप इन्फ्लुएंस होते हो या आप इन्फ्लुएंस करते हो। तो वहां पे ये चीज थी कि आप किसी के अवगुणों की तरफ ध्यान ना दे करके
अगर आपके पास इतना है, हालांकि दिस ऑल इज अबाउट कि आपने अपने आप का कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया है, कैसी आप लाइफ जी करके आए हैं, किस तरह के मूल्यों का आप पालन कर रहे हैं, तभी आपके अंदर वो इतनी ग्रेविटी होती है कि आप कर पाते हो। बट इट इज एडवाइजेबल, एक एक कंसाइंस में आकर, एक मेमोरी में भी आकर हम लोग ध्यान देकर भी अगर इस चीज को करें, तो वी शुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस बाई आर। जब आप ध्यान नहीं देते हो तब आप पाते हो। हमारा ये है ना इंटरनेट, वो थोड़ा स्पॉटी हो थोड़ा रहा है। सा नहीं कैसे, हाँ, हाँ ड्रॉप हाँ, करे। क्यों बीच में काफी काफी क्रम है जो हम मिस कर गए क्रम है, मतलब कि ध्यान कैकेयी का, मैं यही कैकेयी बता का रही थी। प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग बता रही थी भगवान राम के साथ, हाँ, तो है ना। उन्होंने उस समय पूरी प्रजा देख रही थी या नहीं देख रही थी, वो तो वही करते जो वो करना चाहते थे। उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि ये सारे द्वेषों को आप अपने मन में ना धारण करें, आप वो करें जिससे उसका भी मन निश्चल हो जाए, उसके मन में भी जो द्वेष था जिसके चलते उसने व्यवहार कर दिया, वो साफ हो जाए। तो इन्फ्लुएंस करने वाला अप्रोच रखना चाहिए। इन्फ्लुएंस हो, और ये थोड़ा सा, मतलब हम लोग तो, मैं तो अपनी जिंदगी में काफी कैलेमिटी झेली, तो मैंने पाया ये चीज कि आप इन्फ्लुएंस करने के लिए, करने का मतलब है कि आप उससे प्रभावित होकर के उसके जैसे ना बन जाएं। आप कोशिश करें कि आप सत्वगुण में रह के, सत्वगुण का मतलब है अच्छे व्यवहार में रह के, उसको प्रैक्टिस करें बार बार बार। इसमें ताकत लगती है बहुत, अपने ही मन से, अपनी ही इच्छाओं से बहुत फाइट करनी पड़ती है, लेकिन करने के बाद जो अनुभूति होती है सामने वाले में भी दिखती है, और अपने अंदर भी एक, हर एक्शन का एक रेजिड्यूअल रह जाता है हमारे अंदर। हम किसी से लड़े, वो भी एक रेजिड्यूअल छोड़ जाएगा हमारे अंदर, चलता रहेगा, ऐसा बोल देता वैसा बोल देता। हम शांत रह जाएं, समझ के साथ, अवेकनिंग के साथ, जस्ट ये नहीं कि हम दबा रहे हैं अपने आप को, तो उसका भी एक रेजिड्यूअल रहता है कि आपने क्या फील किया, और फर्दर उस चीज को लेकर और परिपक्व होते हो। तो ये चीज जो अभी कृष्ण भगवान जी के रेफरेंस में बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेप मदर्स को कैसे रिस्पेक्टफुली, इक्वली किया, दिस ऑल इस्टेब्लिशेस अ वैल्यू सिस्टम इन द सोसाइटी, कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ना करें। क्योंकि वो लोग जो करते थे वो स्वतः आदमी के अंदर स्टैब्लिश हो जाता था। जैसे मम्मी पापा कुछ करते हैं, खास करके पॉजिटिव जब कुछ करते हैं, तो बच्चों के अंदर वो चीज अपने आप इनग्रेन हो जाती है, अंदर पहुंच जाती है, वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो मैं क्योंकि ऐसे में एक सामान्य आदमी के तौर पे जब मैं सोचती थी, तो मैं भगवान के व्यवहार को भी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, बहुत हद तक तो मैंने पाया जीजा जी, मैंने थोड़ा सा ओशो को पढ़ा, मैंने जब गीता पढ़ा, वो टाइम हो गया उसको पढ़े, फिर मैंने ओशो को पढ़ा। मतलब उसने, उन्होंने जो खोला है अर्थ, कि वास्तव में कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को, वो इतना डीप था। जो मैंने उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसके बाद अब मैं गीता पढ़ती हूँ तो मुझे और अच्छा समझ में आता है। बड़ा प्योर प्योर, मतलब जो सच है वो इतना टची है। जो खास करके जब उन्होंने बताया उसको पढ़ने के, ये तो देखिए भाव में आकर के पढ़ना। ये जी एक बात और मेरे मन में आ रही, मैं आपको बताऊं जो मैंने महसूस की है। मेरे अंदर बहुत सवाल थे, बहुत द्वंद थे कि क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने जीजा जी पाया, और मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि ये सत्य है, कि सबसे पहले आदमी को अपने आप को जानना है। मतलब जानने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने आप को इतना टटोलो, हर स्पेयर ऑफ लाइफ में, प्रेम में, रिश्तों में, पैसे में, जॉब में, जितना अपने आप को खंगाल सकते हो, और सत्य सत्य अपने आप को जान जाओ, एकदम नंगा सच कि मैं ये हूं। अगर आपका मन कहता है इस स्टेज पे भी मेरे अंदर अभी सेक्स अर्जेस हैं, अभी मेरे अंदर मुझे लगता है मेरा सम्मान बहुत हो, मेरे अंदर पैसे, मेरे पास पैसा बहुत हो,
तो ये एक देखना, इस अपने भीतर की इस चीज का दृष्टा बनना बहुत सुखद, बहुत जरूरी चीज है। जब ये आप दृष्टा बन जाते हैं आप, और तब ज्ञान की बातें आप पढ़ते हो, तो फिर जीजा जी वो बिल्कुल वही काम करते हैं जो अभी इन्होंने बताया, कि वो प्रकाश पड़ा ज्ञान का, और आपके उस दृष्टा भाव तीत होने की वजह से वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर पता ही नहीं है तो फिर वो इवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो गुप्त रह गया। ये हमने पाया जीजा जी अपनी लाइफ से। जो भी मेरे अंदर वाइसेस थी, अंदर बहुत थी, मेरी तो इमोशनैलिटी बिल्कुल पागलपन के हद तक थी। तो बहुत मुझे, जैसे कल आप कह रहे थे कि नहीं अभी मेरे को, तो मैं तो इतनी छोटी बात पर आ जाता हूँ। हमने कल ऐसी मेरे माइंड में आया कि हम लोग बड़ी बड़ी बातों में पढ़ते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह। तो क्रोध एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि गीता ये कहती है कि कामना ही जड़ है, उसके बाद तो बाकी चार अपने आप आ जाते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन हम लोगों को होते हैं, जैसे आपको हुआ, हम लोगों को होता है, यही जीजा जी फिर सब, है ना, गलत चीज को तार तार कर देता है और सही चीज को संपादित कर देता है। नहीं? हाँ, यस यस यस, ये जो ये रियलाइजेशंस हैं, ये मैं लेकिन तुमने बताया ये सारा कुछ कर्म है, यू हैव टोल्ड एवरीथिंग। जी, मैंने लेकिन जो ओरिजिनली जो मतलब जो भगवान का जो जो है ना, मतलब लॉर्ड राम का, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको भी लीला को थोड़ा समझने के लिए यू हैव टू बिकम, मतलब अब अनलेस वी आर डिवोटीज, इट इज बिल्कुल बिल्कुल। नॉट इजी टू कैन अंडरस्टैंड। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो आइडियल बिहेवियर उनका कैकेयी के साथ था, सारे प्रजा के साथ था, हर एक के साथ था। सो ही हैड कम हियर टू शो इज द आइडियल बिहेवियर। वही चीज जो है लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसके अंदर में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, मतलब वो हम लोग हम्म अगर उसको खाली ऑब्जर्व करें तो विदाउट एनवी टू इधर लॉर्ड राम और लॉर्ड श्री कृष्णा, विदाउट एनवी, बिकॉज मेनी पीपल आर कैन एनवियस ऑफ लॉर्ड। जो एनवियस का मतलब यहाँ पर ये है कि यू डोंट बिलीव, यू थिंक दैट, मतलब वो उस सेंस में कि आप भगवान को मानते ही नहीं है, तो फिर आपको निगेट तो फिर कर रहे कुछ हैं। भी, तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं, मतलब यू आर वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब दैट कैन नॉट बी हेल्प्ड। यू सी, आप तो फिर पूरी तरह से माया के चंगुल में हैं। तो फिर तो हम्म आपको, मतलब यू विल गो ऑन कलेक्टिंग करम है द रिएक्शंस ऑफ योर एक्टिविटी, योर वॉट एवर यू आर डूइंग। तो मतलब है, यू आर टोटली टोटली इन कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस। तो फिर वो तो माइंड, वो माइंड जो है आपका, जो है वो अपना कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है उसके हिसाब हम्म। से। तो वो तो बहुत सारे। भगवान तो फिर उसको बिविल्डर करते हैं, और ज्यादा बिविल्डर करते हैं। तब हाँ। he gives what the person wants. He wants to not believe in God. Yes, go ahead. He will हाँ, facilitate that. सही बात है। तो ये है, मतलब कि मेन चीज क्या है ना, डिवोशन, चाहे वो कृष्ण हो या उनके कोई भी इनकारनेशन जो भी हम्म हैं, दे हैव दिस दिस पावर, कि भाई अगर आप उनके डिवोटी हैं, चाहे लॉर्ड कृष्णा के, लॉर्ड राम के, नरसिंह देव के, वामन देव के, वराह पुराण में जो भी है क्या नाम है, तो लाइक दैट क्या नाम है, देन यू डेवलप दैट दैट डिवोटीज वाला जो भाव, आप भाव क्या मतलब, यू लिव, यू लिव हम्म इन डिवोशन ऑल द टाइम, 24/7। तब फिर कर्म है, मतलब आपको यू विल स्टार्ट थिंकिंग कर्म है, मतलब इन ए वेरी डिफरेंट वे। फिर मतलब ईर्ष्या कैकेयी से या किसी से भी खत्म हो जाएगी। यू नो, ऑफ कोर्स कर्म है, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस आर गिवन कि भाई कैकेयी वाज सब, मतलब वो तो कौशल्या माता से भी ज्यादा प्यार करती है भाई लॉर्ड राम को, बहुत ज्यादा। शी वॉज ओरिजिनली सो हैप्पी टू सी दैट ही हिज कोरोनेशन इज अराउंड। बट हम्म यू सी क्या नाम है, वो तो सब अब कथा में तो जैसा है बिल्कुल, जो कि सच्ची हुई है, कि सारे लोगों ने आ करके, मतलब सरस्वती जी से रिक्वेस्ट की कि तुम जा करके हम्म। उनके उनके जबान पे बैठो, और ये सब काम करवाया उनसे। तो ये सब है, लेकिन जो लॉर्ड राम तो क्या नाम है, ही इज इनफॉलिबल। ही इज
इज मतलब कि वो तो भाई भगवान थे, वो आए थे एक पर्पस के लिए। तो दैट पार्ट इज जो तुमने बहुत अच्छा बताया क्रम है सारी चीजें। तो जीजा जी 29 पढ़ लिया जाए। हाँ, यस यस प्लीज। तो किसको, मेरे को पढ़ना है या हाँ किसको ट्वेंटी पढ़ना है? नाइन पढ़ना है जीजा जी। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। ताह पुत्र मंग का मारोप्य स्नेह नुति पयोधरा हर्ष विह्वला तमात्मना शिचि श्रुनेत्र जले। The mothers, after embracing their son, sat him on their lap. हम्म। Due to pure affection, milk sprang from their breasts. They हम्म। were overwhelmed with delight, and the tears from their eyes wetted the Lord. When Lord Krishna was at Vrindavan, even the cows would become moistened by affection towards him, and he would draw milk from the nipples of every affectionate living being. So, what to speak of stepmothers who were already as good as his own mother? सो यू सी हियर, ये भी आप इन्होंने बता दिया कि भाई जो है मतलब कितनी देवकी माता ने तो भाई पुराने जन्म में बहुत ज्यादा तपस्या की थी उन्होंने, और वासुदेव ने, तब जाकर के उन्होंने यही मांगा था कि भाई भगवान तुम हमारे, आई आई वांट यू इस, पता नहीं सन लाइक यू कहा था शायद, सन लाइक यू। तो भगवान ने कहा भाई मेरे लाइक में, मेरे मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, तो आई विल हैव टू माई सेल्फ कम। और उसके अलावा देखिए क्या नाम है, तो फिर उसको उन्होंने पूरा किया। और कितनी फॉर्चुनेट है वो मतलब उनकी स्टेप मदर्स भी, कि भाई देवर वो आकर के भगवान उनकी गोद में बैठे हैं, है ना। तो दैट पार्ट इज वेरी एफेक्शनेट। बात है ना, मतलब जैसा तुमने भी बताया और मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई डिवोशन जो है ना, वो जो है वो मतलब मुश्किल भी है आसान भी है, बट द फैक्ट इज कि वो डिवोशन जो है ना, जैसे भगवान के बारे में ये बहुत कुछ कहा गया है, क्या नाम है कि भगवान जो है ना सब कुछ दे देते हैं, बड़े आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। आसानी से भक्ति किसी को नहीं देते हैं। तो इसीलिए जैसा हम लोगों को ये बड़ी विशेष कृपा है कि हम लोग भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, दिस क्योंकि इज क्रम है। इंजेक्टिंग, दिस हम्म। इज रियली वेरी इंजेक्टिंग काइंड ऑफ। दिस इज इंजेक्टिंग काइंड ऑफ। मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना भक्ति आसानी से नहीं मिलती है, तो जब हम उसको श्रवण करेंगे, जब हम उसको बार बार श्रवण करेंगे, बार बार उसको फील करेंगे, तो ये चीज हमारे अंदर धीरे धीरे करके इंजेक्ट होगी। इंजेक्ट पता नहीं सही नहीं, शब्द वो है। ऑलरेडी हो चुकी है। वो तो हाँ मतलब वो तो ये द वेरी फैक्ट कि हम लोग वी आर गेटिंग टुगेदर एंड डूइंग इट, तो ये तो हो चुकी है, भगवान की कृपा हो गई है। अदरवाइज तो हम मतलब पता नहीं कितने 20 साल से 25 साल से तो आई 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 डोंट थिंक वी वर इन टच विद यू यू एंड राधा एंड ऑल दैट, बिल्कुल। है ना। तो फिर ये तो भगवान चाहते हैं, ये चाहते थे, तो ये हो रहा है, ये उनकी विशेष कृपा है हम सभी के ऊपर, है सही में। नहीं, है ना। तो एनीवे, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि तुम वहां पे मथुरा में मतलब लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि में आ गई। वहां तो एक एक इंच जो है वो भगवान की जन्मभूमि ही है। ये भाई बात तो यू आर, सही है जी। हाँ ये तो अगर मतलब एनीबडी हु इज नॉट ए डिवोटी वहां पर, तो फिर ही हम्म। इज रियली अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सही में। हाँ नहीं तो वैसे ये, ये चीजें देखने में आता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है इन जनरल, वो जो है वो काफी इस चीज को, मतलब कहते नहीं कि ना 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 करके भी उनके अंदर बहुत है। बिल्कुल, यस यस, क्या नाम है, आप मतलब सोचिए हम यहाँ तो बहुत। नमस्कार करने का मेथड ही है राधे राधे। राधे राधे, मतलब वृंदावन में मतलब हर जगह पे राधे राधे। दे क्योंकि ओनली। वो वहां पे राधा रानी जो है ना वो वहां की, क्योंकि उसके अंदर में जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया है वो भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए रास्ता जो है राधा जी के थ्रू जाता है। हाँ तो इसीलिए वो जो है ना, जब जो है ना वो राधे राधे करते रहते हैं, राधे 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 राधे, चाहे असल वो में
हाँ, यहाँ जो कृष्ण भगवान थे, कहते हैं यहाँ के लोग कि वो उन्होंने अपने मुख से ये बात कही कि भैया हमें अच्छा। मत जब। हाँ, उन लोग यहाँ के लोगों से जब आप कहानी सुनिए तो वो बताते हैं कि जो है उन्होंने अपने मुख से ये बात कही थी कि जो है मैं बाद में, कहते नहीं राधे कृष्ण, कृष्ण राधे नहीं कहते हैं, जैसे सीता हाँ कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम इन्हीं को जपो तो हम अपने आप ही चले आएंगे तुम्हारे पास। हाँ, ये जो है ना, राधा कृष्ण सीताराम है हाँ, है ना? तो तो ये है। लोग बताते हैं कि उन्होंने कहा है राधे राधे करके। हम्म। चलिए जी, जल्दी आप वो कर लेते हैं, फिर आप अपना हाँ हाँ भाई यार। लिएगा। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। नमस्ते जय जी। नमस्ते भाई।